फोन किया था, उन्होंने मुझसे बात की थी। वो गन उनके पाँव पे लग गई थी साफ सफाई करते और बोला गणेश मैं ठीक हूँ, मैं बहुत जल्दी अभी डांस करूँगा, अपन जाके डांस करेंगे। अक्षय कुमार बहुत बड़े मेरे गुरु इस चीज़ में, उन्होंने मुझे सिखाया है बेसिकली। Welcome to India.com and this is Onam Gupta. So today I have with me an amazing star cast who is here to promote their upcoming film Pintu Ki Puppy. कैसे हैं आप? Sale तो या? Very excited. Very excited. I'm excited too. And sir, you know, another romantic comedy film है ये और इसका टाइटल इतना यूनिक है, तो मेरा क्वेश्चन है इसके पीछे रीज़न क्या है? पिंटू की पप्पी जो टाइटल है उसका रीज़न ये है कि ये हमारे प्रशांत जो फिल्म में इनका नाम प्यार से इनको पिंटू बोलते हैं, ये प्रेरणा इनको घर पे प्यार से पप्पी बोलते हैं, तो पिंटू की पप्पी। ओह अच्छा, दैट्स द टाइटल। और एक रीज़न और भी है, इस फिल्म की जो मेन कहानी का जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे जो पिंटू भैया है ये अपने किसी भी गर्लफ्रेंड को प्यार से गाल पे पप्पी करते हैं, उसकी शादी किधर और हो जाती है, इसलिए पिंटू की पप्पी। तो दो रीजन है जिसके सामने पिंटू की पप्पी टाइटल था। इंटरेस्टिंग है स्टोरी लाइन, उससे भी ज़्यादा यूनिक है ये टाइटल। आई वुड जस्ट वांट टू से कांग्रेचुलेशंस फॉर योर डेब्यू फिल्म। फर्स्ट एक एक्टर के लिए उसकी फर्स्ट फिल्म हमेशा बहुत स्पेशल होती है, तो डू यू गाइज रिमेंबर द मोमेंट व्हेन यू गॉट टू नो दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द फिल्म? क्या रिएक्शन था? आई स्टार्ट विद यू जानिया। So when I got a call from the team, they asked me to come to Bombay once and visit. So I put up in Delhi. I took my dad with me, and we went the next day to the studio. And there we met Shiv sir, who's the director of the film. And he told us the title, which is Pintu Ki Puppy. And after hearing the title, my dad was a little dicey about it because he's a little protective and fathers are protective for daughters. And then the first question that he had to ask was ki, is there a kiss scene? But proving him wrong, there's no kisses, there's no anything wrong happening in the film. The film is very clean, very innocent. It's a very small town boy's story, how his tragedy builds into a business and then how it is settled. So it's a very cute family oriented film, and when I got to know that I'm final for this film, the excitement was anything beyond limits, because that time I also got to know that Master Ji is a part of the project, and nothing bigger than that. I've seen him, I've grown watching him on television, songs, choreographing big hits. Being associated with him is like a dream, and which has come true by God's grace. So I'm very, very lucky. I'm very privileged to be working with him. That's lovely. You, Sushant? My level of excitement and happiness was beyond this universe, because of course working with Master Ji, and I got to know that there's a lot of action, dance and comedy. So I was very happy and fortunate that in a single film I was able to do all the elements which I wanted to do. And I just cannot thank enough to Master Ji in words for giving me this opportunity, because I believe that hard work can be seen only if you get the opportunity. So I'm very thankful, and me and my co-artist, we work very hard, and I hope that you'll love it. Of course, we will love it. Sir, मेरा question है आपसे. Acting, direction, choreography, you are acing all these professions individually. अब कुछ बाकी है आपकी लिस्ट में? मेरे लिए अभी अलग करना यही है कि इस फिल्म से मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है जो मेरे लिए बहुत अलग है और मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। मैंने कोरियोग्राफी कर ली, मैं डायरेक्टर बन गया, मैं प्रोड्यूसर बन गया, मैं एक्टर बन गया, सब कुछ बन गया। इस सब चीज़ में मैं कोरियोग्राफर ही बहुत बेस्ट हूँ, जो मुझे पूरी दुनिया, मुझे पूरी इंडस्ट्री जिसके लिए प्यार करती है। लेकिन मुझे मेरा एक जो चैलेंज मैंने इसमें लिया है, ये यंगस्टर्स को जो बढ़ावा मिलता है, क्योंकि मैं भी किसी ज़माने में यंगस्टर्स था, मुझे भी बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, तब जाके मैं गणेश आचार्य बना। तो इस फिल्म में ये न्यू कास्ट है, दे आर नॉट स्टार किड्स, दे आर स्ट्रगलर, सुशांत, जानिया, विधि यादव करके, और मेरी वाइफ प्रोड्यूसर है विधि आचार्य। तो हम लोग हमेशा न्यू कमर के साथ ज़्यादा काम करते हैं।
लेकिन ये सही वक्त है जहाँ न्यू कॉमर को अच्छी फिल्म बना के अच्छा तरह से प्रेजेंट करने के लिए। ये मेरे लिए एक बहुत अलग चैलेंज है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि मुझे इस चीज़ में हमेशा बोला गया कि गणेश तो पागल है, न्यू कमर्स के साथ फिल्म बना रहा है, तो बेवकूफ़ी पे अपना खर्चा करता है। लेकिन मेरा सोच ये है कि इनसे ज़्यादा अच्छा सिंसियर और हार्ड वर्क कोई नहीं होता, क्योंकि इनको पता होता है यंगस्टर्स को कि हमको क्या करना क्या नहीं करना। हमारी पूरी फिल्म में जो हमने बड़ा स्पेंड किया, उसमें सुबह 5 बजे टाइम स्क्वायर पे, रॉक पे, ग्रैंड कैनियन पे, या इधर 5 बजे 500 डांस का जो मेहनत इनके साथ मैंने की ये बड़े स्केल में, वो जब ऑडियंस जाके देखेगी और रंग लाएगी तब मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अब कुछ अलग किया है लाइफ में। वाओ सर। और वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें मुझे सिर्फ सपोर्ट हमारी ऑडियंस ही कर सकती है, क्योंकि यंगस्टर्स को देखेगी, यंगस्टर्स को वो हिट करेगी, फिल्म अच्छी है। और मुझे बिलीव है कि फिल्म मेरी अच्छी है। मैंने इसमें बहुत मेहनत की, मेरे डायरेक्टर ने, शिवारे ने, मेरी वाइफ में, इनके पीछे बहुत सारी स्पेंड तो है बड़े स्केल में, लेकिन मेहनत इसलिए की है कि ऑडियंस को अच्छा लगे, ऑडियंस इन लोग को जाए, बड़े पर्दे पे देखे और इनको स्टार बनाए। तो जो आने वाले यंगस्टर्स हैं उनका हौसला बढ़ेगा। उनको ये होगा नहीं, यंगस्टर्स को हम ज़रूरी नहीं कि हम स्टार किड्स या कुछ हो। मैं तो बोलता हूँ स्टार किड्स भी टैलेंटेड तो हिट होना चाहिए, और जो स्टार किड्स नहीं टैलेंट है वो भी हिट होना चाहिए, जो मैंने चैलेंज लिया है। और उसमें दूसरी बात ये है कि जब ऑडियंस नए स्टार को स्टार बनाएगी, हिट करेगी फिल्म, तो हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उनकी भी आंखें खुल जाएगी नहीं कि यंगस्टर्स को लेके बड़ी फिल्म बनानी पब्लिक एक्सेप्ट करते। तो दिस इज बिग चैलेंज। और मुझे लगता है कि मैं ऑलमोस्ट ये चैलेंज मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। ऑडियंस फिल्म को बहुत पसंद कर रही है। पिंटू की पप्पी जो 21 मार्च को रिलीज हो रही है, उसके गाने बहुत पसंद कर रहे हैं, वो इन आर्टिस्ट को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो बस मैं 21 मार्च को मुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। ऑडियंस विल गो एंड सी देम। ऑफ कोर्स। और ये जो आपका थॉट है ना इसके पीछे, आई रियली अप्रिशिएट इट। आई हैव द क्वेश्चन फॉर यू। यू नो व्हेन यू आर प्लानिंग टू एंटर द इंडस्ट्री, तो एक नो काफ़ी लोगों के अजम्पशंस होते हैं, यार ये इंडस्ट्री ऐसी है वैसी है व्हाटएवर। तो व्हेन नाउ जस्ट बिकॉज यू गाइज हैव एंटर्ड द प्रोफेशन, ऐसा कोई अजम्पशन विच यू थिंक कि ये सही है और ऐसा अजम्पशन जो आपको लगता है गलत है? आई विल स्टार्ट विद यू। So that's true. Grew up listening to all of the things that you've said, but Master Ji actually proved it all wrong. He is such a sweet, kind-hearted person, and only one thing that he's taught us is that be grounded. No matter how big you become in life, always stick to your roots. So I haven't interacted much with the industry yet, but I think for now I have the thought that no, industry is great. We've found ourselves a mentor and he's always there to guide us for the best. Even I take it as I will always ask for my future endeavors मास्टर जी से तो पूछना ही है। तो फॉर नाउ तो मुझे लगता है इंडस्ट्री बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी टैलेंटेड पीपल, या हार्ड वर्किंग। यस। You? I completely agree with Jania. My answer wouldn't be any different because I see this industry as an industry of passionate people. Every department you see the technicians. If I have to say from my team, the DOP, the music director, Master Ji, direction team, everyone was so passionate and so happily working that it didn't feel as burden at all. Yeah. It was a festival, a joyous memory, and that's how the film went. It's always like when you get a right mentor, Yeah. तो things बहुत smoothly चलती है. By the end of the project, we were all like family. We still are like family. We meet each other every day and we have lunches, dinners. It's all, we are a family now. Touch wood. Sir, मेरा question है आपसे कि you know you were called the youngest choreographer of Indian cinema. तो जब आपने you know choreography start करी, आपको लगता है कि उस time पे
इतना कोरियोग्राफर्स को उनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था जितना आज किया जाता है. नहीं, उसमें तो सबसे बड़ा हाथ सरोज खान जी का था. उन्होंने कोरियोग्राफर्स को अवार्ड्स में किया है. बहुत सारे मेरे गुरु कमल मास्टर जी, PL राज मास्टर जी, बहुत सारे कोरियोग्राफर थे जिन्होंने हमको सिखाया कि कोरियोग्राफी सिनेमा की क्या होती है. और आज की जनरेशन में भी इस चीज़ की बहुत कमी है कि सिनेमा के कोरियोग्राफर्स बहुत कम रहे. वो OTT या टेलीविज़न या एल्बम के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं. और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक मास्टर क्लासेस रखूँ जहाँ यंगस्टर्स को मैं सिखाऊं कि सिनेमा की कोरियोग्राफी बहुत अलग होती है, अलग उसके होती है. थॉट अलग होते हैं. बहुत ज़्यादा. सर मुझे ये भी बोलना है कि आपका और गोविंदा का bond, we all know that you guys, like, you are both are very close to each other. Recently there were rumors about his divorce with his wife Sunita Ahuja. तो आपको जब ये सब पता चला, did you talk to him? मैं ये सब ह्यूमर चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता. और मुझे पसंद भी नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बात करूं. वो मेरे लिए बड़े भाई है, मेरे गॉडफादर है. वो बहुत खुश है और मैं इस चीज़ में जानना भी नहीं चाहता और मैं इस चीज़ को देखता भी नहीं. इवन कोई मेरे सामने कुछ बात भी करेगा तो मैं इग्नोर करता हूँ. मुझे इस चीज़ में बिलीव नहीं होता जब तक मैं पर्सनली मिलूँ नहीं, जानूँ नहीं. तो ऐसे ह्यूमर तो कितने होते हैं इंडस्ट्री में. तो मैं इस चीज़ में थोड़ा सा मैं पूरा मम्माज बॉय हूँ. आई वर्क एंड आई विल गो मीट मॉम, माय वाइफ, माय बेटी, उनके साथ रह के. एंड एक और इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, जो बुलेट इंजरी हुई थी उनकी, वो मैं तब हम लोग US में शूटिंग कर रहे थे ग्रेट कैनन में. तो जब आपको पता चला उस टाइम, फोन किया था, उन्होंने मुझसे बात की थी. वो गन उनके पाँव पे लग गई थी साफ सफाई कर, और बोला गणेश मैं ठीक हूँ, मैं बहुत जल्दी अभी डांस करूँगा, अपन जाके डांस करेंगे थोड़ा. तो आपने उनकी फैमिली एंड ऑल सबसे बात करी? तो दैट फैमिली इज लाइक माय अनदर फैमिली. मैं बहुत प्यार करता हूँ उनको. और मैं हमेशा ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि बहुत खुश रहे. उनके दोनों बच्चे, हमारे गोविंदा भैया, भाभी, बी हैप्पी. तो ये रूमर्स और ये सब आप बिल्कुल इसको अवॉइड करते हैं? हाँ, मैं सुनता भी नहीं और मैं सुनना चाहता भी नहीं. सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, you have been quite open about your weight loss. There was a time where your transformation pictures went viral. और एंड लोगों ने ये सब बोलने लगे कि गणेश आचार्य ने ये डाइट फॉलो करी, ये फिटनेस टिप्स थे उनके, उन्होंने ये एक्सरसाइज करी. बट आज मुझे आपसे पूछना है कि क्या आपका वेट लॉस मंत्रा था उस टाइम? हाँ, अक्षय कुमार बहुत बड़े मेरे गुरु उस चीज़ में. उन्होंने मुझे सिखाया है बेसिकली कि जल्दी सोना चाहिए, कितना देर सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए. मैंने बहुत फॉलो किया उनको. फिर मैंने स्विमिंग 2-2 घंटे में स्विमिंग पूल में फ्लोटिंग एक्सरसाइज करता था डाइट पे और बहुत सारी चीज़ें. मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मिला क्योंकि मेरा टाइम बहुत सेट हो गया. 10:30-11 बजे मैं सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर जिम करता हूँ. फिर ज़रूरी नहीं है कि वेट ट्रेनिंग है, सबको हेल्दी रहना, खाना कितना कैसे फिट रहना, वो सब कुछ मैंने बहुत ये किया है. आई एम बेसिकली आई एम नॉट अल्कोहलिक, आई एम प्योरली अल्कोहलिक. वर्क 5 सिगरेट तंबाकू कुछ नहीं खाता. मम्मा बॉय जाके काम करी, मम्मी के पास बैठता. मम्मी वाइफ मेरी बहुत प्यारी है, वो उनके साथ में वो मुझे मतलब पूरा ध्यान देती है मेरी बेटी वाइफ. तो मैं बहुत फिट महसूस करता हूँ अपने आप को और बहुत लकी भी महसूस करता हूँ. सिंपल लाइफ, हेल्दी लाइफ, सिंपल, वेरी सिंपल लाइफ. तो एक सबसे ज़्यादा कोई वेट लॉस कोई सबसे ज़्यादा क्या हेल्प किया आपको? एक्सरसाइज, नॉट वेट ट्रेनिंग. स्विमिंग में मैंने ज़्यादा करके एक्सरसाइज की, स्विमिंग की और टाइमिंग चेंज किया, खाने का टाइम चेंज किया. ज़्यादा लेट नहीं खाता हूँ, बहुत लिमिटेड खाता हूँ. और अभी तो मैंने पहले तो नॉनवेज खाता था, वो भी नहीं खाता हूँ, वेजिटेरियन हो गया हूँ मैं. और मेरा बहुत सिंपल सा खाना होता है, दाल चावल सब्जी रोटी, बस और कुछ नहीं. मतलब चाहे कितना भी हो, that's my routine. ठीक है. It was lovely interacting with you all. I just wish you all the best for the film, especially for you guys. ये debut film है. 21 के साथ 21 मार्च को जाइए और फिल्म देखिए पिंटू की पप्पी. वर्ल्ड वाइज रिलीज हो रही है, पूरे वर्ल्ड में रिलीज हो रही है. थिएटर की फिल्म है, सिनेमा के घर में. एक पप्पी 21 मार्च.
सो गाइज अब तो देखना बनता ही है ये फिल्म, बिकॉज इतनी टैलेंटेड कास्ट है. गणेश आचार्य है, जानिया है, सुशांत है, तो विधि भी है जो अभी नहीं है बट है इस फिल्म में. तो प्लीज़ देखना ना भूलिए. पिंटू की पप्पी इन cinemas on 21st March.